Namaste and welcome to this very special broadcast. Once again coming to you live from Ground Zero Kashi. We are at the Dashashwamedh Ghat and behind me once again the preparations for the Ganga Aarti are in full swing. Today people will be there. Lots of people on the boats who will be now watching the Aarti like the Prime Minister and the Chief Ministers did last evening. And you can see a lot of hustle and bustle, a lot of activity on the other side, on the riverbed, on the sand bed also, where there are camel rides, horse rides which are on. It's a little mela on the far side or the other side of the river. And there are boats which are going up and down, ferrying people across the various ghats. 80 ghats here at Kashi. Kashi wears a very festive look as the Prime Minister winds up his Kashi Yatra and heads back to the capital. It's been hectic for the Prime Minister and he has focused only on two aspects. Vishwas in our parampara, Vishwas in our Sanatana Pratha, and Vikas, development of our heritage cities. The oldest city arguably on the planet which continues to thrive, finds a mention from the Rigved downwards over centuries. That is Kashi, and he has only urged the people of Kashi to work towards Swachhata. And that's exactly what he said even at the Swarved, the Mahamandir, where he had been, saying that if you are going to follow the principles of Sadafal Devji Maharaj, a freedom fighter himself and somebody who's the proponent of Vihangam Yoga, and he's also, his work has been recognized by the United Nations ECOSOC and been given special consultative status, Vihangam Yoga, which can improve the human form, the human ability to think, assimilate, and also increase our attention span if we follow this meditation paddhati or if we practice this form of meditation. The Prime Minister advocating that we must work towards Swachhata and also we must work towards collective Sabka Prayas for the people, for the country. That's the message that he has spread forth, even as he has taken stock of the work done by all the Chief Ministers and Deputy Chief Ministers. Intensive meetings, it happened even on the river, while on the barge soon after the Ganga Aarti, where close to an hour and a half, they were going up and down Kashi on the river, and there were discussions that were being held. Late in the night, the Prime Minister is up and about, just like Yogi has done umpteen number of times that he has visited Kashi, that he takes stock of activities and development work late in the night so as not to disturb the local public and to totally disturb and set the entire local traffic and their entire work, the entire cycle into disarray. So this is something which he did till 1 AM. He was outside, and the message to the Chief Ministers across states is very clear. Yogi is the example, because he is hailed Yogi as a Karma Yogi, somebody who's worked hard and who's delivered. And he said, do as good as Yogi, or if not, better. Let's listen into what the Prime Minister had to say. बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है ये अच्छी तरह से समझते हैं। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। And a big update coming through right now. There has been a fresh guidelines or directives announced for all international travelers coming into India from at-risk countries, at-risk nations. Runjhun Sharma joining us with the details. Yes, Runjhun. This notification essentially says that there has to be a mandatory pre-booking of RT-PCR tests by international passengers arriving at 6 major Indian airports. These 6 major Indian airports are Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, and in fact this has been done to streamline the process. Considering we've seen a lot of queues at the airport, people trying to get their RT-PCR tests done. This is being made mandatory by the government at this point, given the fact that we're amidst the Omicron scare.
now what the DGCA has in fact requested the state advisory for all airlines is to check that mandatory pre-booking of all the passengers. This is like I said, for all major airports, which is Delhi, Mumbai, Hyderabad, Chennai, Bengaluru and Kolkata as well. Remember, the Omicron cases in India also are concentrated right now in particular states. These pockets are considering mostly it is the international passengers that are getting in the Omicron variant, but to make things simpler and also to make contact tracing more easy. This is the notification that is just been sent out by the Ministry of Civil Aviation. Anand. Yes. Now, from when will these directives be issued from? 20th December is what the notification points out at. The new system will come into effect in another 5 days, which is 20th of December. In fact, so for all the international passengers that are booking in their flights now, Anand, they will have to also pre-book their mandatory RT-PCR tests before coming into major Indian airports. This has been made mandatory while you're booking your flight. Up till now, the rule really was that once you get into the country, at the airport, you had to get a mandatory RT-PCR done. But we've seen the sort of queues and crowds because of a lot of inflow of these passengers. And to streamline that, there is a notification from the Ministry of Civil Aviation, in fact, that has now said that while passengers are arriving into major Indian airports, they will have to mandatorily take RT-PCR test. Right. Right. Thank you for your input, Runjhun. Well, let's shift the focus back to Kashi and the politics around the Prime Minister's visit. The Prime Minister is just taking off back to the capital, but the politics is on. The opposition taking jibes. The former UP ke ladke, both Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi, taking jibes, one at Yogi Adityanath, the other at Prime Minister Narendra Modi. Akhilesh trying to cover up for his remark yesterday where he said that he didn't mean it to be a personal jibe against Prime Minister Modi. He was purely talking from a poll sense, and then taking a jibe at Yogi Adityanath, saying that the Prime Minister took a dip in the Ganges. Why didn't Yogi? Does he know, or is it because he knows that Ganga is not clean? The other person was Rahul Gandhi, who turned around and said that the Prime Minister made the event all about himself. बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है देखिए मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। Well, this is what the former UP ke ladke have to say. We did something. We went down out into the streets and to the nooks and corners and to some of those places where you find Kashivasis, the intelligentsia, the students, listening to what they had to say. First up, a group of people who are former professors at the BHU, judges, those who have lived here in this city all their life, more than 6 to 7 decades, and have seen politics fructify over chai. This is the charcha about Kashi, PM Modi and all other aspects.
सुबह सुबह बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, फिर हमने पूछा कहाँ पर बैठती है मंडली, तो हमको एक छोटी जगह बता दी गई जहाँ बताया गया यहाँ काशी की विधानसभा होती है या कहें काशी का पार्लियामेंट. So the intelligentsia who have their conversations over a cup of tea joining us now. आप सबको मेरा नमस्ते, हर हर महादेव. पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि सुबह सुबह जब यहाँ आप हर रोज आते हैं यहाँ चाय पीने? मैं ठीक 9 बजे आ जाता हूँ यहाँ, और आज से नहीं, मैं 4वां साल मेरा पहली तारीख को आपको चाय पिलाऊंगा ये अगर आते हैं. 91 स्टार्ट होगा. हाँ, मैं यहाँ ये पप्पू की अड़ी में जो है आज से नहीं 60 साल से हूँ यहाँ, 60-65 साल से हूँ, और आज भी हूँ. पहले भी चलता था ये अड़ी, आज भी अड़ी चल रही है. औरंगाबाद लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, प्रोफेसर दोनों हैं, तब उनसे आप पूछ लीजिए. तब मैं हर हर महादेव, हर हर महादेव. पर एक बात बताइए, आप 60 साल से यहाँ पे आते हैं, पिछले 7 साल में काशी में कुछ बदला है कि नहीं? प्रोफेसर जी से पूछने से पहले हमसे पूछते हैं. पहला तकाने के 2.5 वर्ष में जो मोदी ने कर दिया काशी धाम को, 250 वर्ष के बाद कोई नहीं कर पाया, वो मोदी करके दिखा दिया. तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि काशी में काया पलट हुई है और या सिर्फ मंदिर तक ही वो सीमित है? देखिए, काशी में जो भी आया था 7 साल पहले, वो अगर आज आ जाए तो वो पहचानेगा नहीं काशी कैसी है. देखिए, काशी में इतना ज़्यादा विकास हुआ. पहले क्या होता था कि लोग वोट लेते थे पूर्वांचल से और काम होता था पश्चिमांचल में. लेकिन इस बार जब मोदी से आए हैं बनारस में सांसद होकर के, तब से पूर्वांचल में विकास काम बहुत हुआ. नहीं तो पूर्वांचल बहुत पिछड़ चुका था. एक तरह से कहा जाए कि भुखमरी से लेकर के पिछड़ापन यहाँ जबरदस्त था. लेकिन आज आप अगर देखें तो एयरपोर्ट देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, रिंग रोड देखिए, हाईवेज देखिए, ट्रामा सेंटर देखिए, कैंसर सेंटर देखिए, और वो जो कम्युनिटी सेंटर बना है उसको देखिए. ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो शायद बनारस के, हिंदुस्तान के किसी शहर में एक साथ इतने काम हुए. काशी विश्वनाथ मंदिर की बड़ी महत्ता है. महात्मा गांधी बिना दर्शन किए लौट गए. उन्होंने जब जा रहे थे दर्शन करने, उन्होंने गंदगी देखा तो इतने क्षुब्ध हुए कि उनका मन खिन्न हो गया और वो लौट आए. और आकर के उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ के रास्ते का ये हाल. मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया. गांधी के भक्त तो बहुत सत्ता में आए, कहने को तो गांधी के सबसे बड़े भक्त लोग थे, लेकिन गांधी के मार्गों पर अनुसरण सिर्फ मोदी ने किया. दुर्भाग्य, मेरा घर थोड़ा दूर था वहाँ से. मेरा घर लिए ही नहीं मोदी जी ने, लिए ही नहीं मोदी जी ने. मेरा घर अगर ले लियो थे मोदी जी तो मैं धन्य हुआ होता. लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि मोदी जी का ऋणी रहेगा काशी. अच्छा, आप बताइए आपके विचार. माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति के ध्वज को कल बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया. और एक विशेषता मैंने यह देखी कि जिन श्रमिकों ने विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया था, उन श्रमिकों के ऊपर उन्होंने फूलों की वर्षा की तथा उन लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने भोजन किया और यह कहा कि मैं भी मजदूर ही हूँ. और एक बात देखिए, आगरा का ताजमहल जिस मजदूरों ने बनाया, उन मजदूरों को उस समय की हुकूमत ने हाथ कटवा लिया कि पुनः ताजमहल न बने. तो वह विध्वंसकारी प्रवृत्ति थी और यह सृजनात्मक प्रवृत्ति है. यह सृजन पर जोर देते हैं, निर्माण पर जोर देते हैं. और काशी का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टि से विकास हुआ है और दोनों का आपस में कह सकते हैं कि समन्वय हुआ है. मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी हूँ तो कह सकता हूँ कि श्रेय और प्रेय दोनों का समन्वय हुआ है. केवल अध्यात्म ही का नहीं, केवल भौतिकता का ही नहीं, दोनों को मोदी ने जोड़ने का काम किया है. यह उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया. बहुत सही कहा. इतने बढ़िया वक्ता है. थोड़ा सा हम एंगल चेंज करते हैं. यहाँ भी कुछ लोग हैं, वो पीछे से टिप्पणी कर रहे थे. मैं बेसिकली मैं पैदा तो यहीं हुआ. मेरे पिताजी 100 साल 150 साल पहले यहाँ आ गए थे. यहाँ आ गए थे. आप आंध्र काशी वासी हूँ. अच्छा, आप काशी वासी हैं? हाँ, प्योर काशी वासी हूँ. पप्पू भैया, चाय बहुत बढ़िया है. हाँ, तो जहाँ तक काशी की बात है, ये एक मिनी इंडिया है. यहाँ आपको
एक चाय वाला भी दक्षिण भारतीय भाषा में बात करते हुए मिल जाएगा, एक नाव चलाने वाला भी भाषा। तो कल हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि उन्होंने ये बात कही थी कि एक मल्लाह जो नाव चला तो वो भी ऐसा बात कर रहा है तमिल में कि हमको लग रहा है कि मैं दक्षिण भारत में आ गया हूँ क्या। तो ये काशी की विशेषता है, ये मिनी इंडिया, यहाँ सब लोग आके बसते हैं। और हमारे पिताजी जब आए थे तो हम लोग काशी छोड़े नहीं, और तब से हम यहीं पढ़े, बीएचयू पढ़े, मेरे पिताजी बीएचयू में सर्विस के, सब कुछ यही हमारा। तो मुझे काशी जितना प्रिय है उतना कोई इस पूरे इंडिया में कोई शहर प्रिय नहीं। पर अब पिछले 6-7 साल में क्या परिवर्तन हुआ है? कुछ जो हुआ है वो ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है? नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। सुख सुविधाएं काफी बढ़ी हैं, ट्रैवल की सुविधाएं बहुत अच्छी हुई है। एयरपोर्ट तो आप देखिए रहे, वहीं एयरपोर्ट से ही आप आए होंगे, नेचुरल है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट यू कैन से। उसके अलावा घाटों का सुंदरीकरण बहुत हुआ है, सफाई पहले से बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। रोड्स भी अच्छे बने हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। काशी का उद्धार हुआ है और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं। क्या काशी वासियों में एटीट्यूड चेंज हुआ है मोदी जी जो कर रहे हैं उसकी वजह से? आपका शुभ नाम? मेरा नाम समीर है। बम बम बोल रहा है काशी। काशी आध्यात्म की राजधानी रहा है, यहीं से चारों तरफ ज्ञान भेजा जाता रहा, इसीलिए लोग यहाँ पे शुरुआत से आते रहे। और जहाँ तक अभी का सवाल है, अभी मोदी जी ने जो किया उसको तो कोई पा ही नहीं सकता। मोदी जी और योगी जी कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और आम लोगों से संबंधित सभी कार्य कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले आपने कॉरिडोर खोल दिया, तो क्या ये चुनाव के मद्देनजर किया? आप देखेंगे कि इससे पहले की सरकारों ने कार्य शुरू किए, 15-15, 20-20 साल तक कार्य नहीं पूर्ण हुए, और उसके बाद हमारी योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की सरकार आई और 2-2, 3-3 सालों में वो कार्य पूर्ण हो गए। तो ये तो अच्छी बात है कि 2 और 3 सालों में कोई कार्य शुरू किए जाएं और उसी को पब्लिक के लिए दे दिया जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपको लगता है ये चुनाव की वजह से हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी जो इन्होंने कहा, यहाँ 17 साल में एक हम लोग का सामने घाट के पुल बन रहा था, वो 17 साल में नहीं बन पाया। छोटा सा पुल था, पीपे का पुल पहले ऑर्डिनरी था, फिर उसको बना रहे थे। तो 17 साल में कई आए, और इन 4 सालों में 17 ओवरब्रिज बनारस में बने हैं। तो चुनाव की वजह से थोड़ी तो काम हुआ। अगर चुनाव की वजह से भी कार्य हुआ है तो कार्य तो होना ही चाहिए। आप क्या कहेंगे, कितना परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, कल के जो धाम का लोकार्पण हुआ है कि ये विधि का शुभ लेखा कि हमने इतिहास बनते देखा। और जिस लेजीनेस की आप बात कर रहे थे, वो लेजीनेस नहीं है, वह इस अंधी दौड़ लगा रही दुनिया में ठहराव है। और वो ठहराव संतोष से पैदा होता है। आज भी काशीवासी चला चमेना गंग जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, इसमें बिलीव करता है। और ये जो आप लेजीनेस कर रहे थे, वो ठहराव उसी का प्रतीक है, संतोष का है। देखिए, दौड़ती भागती दुनिया में ठहराव की बात, ये देखिए घुमा के पर्सपेक्टिव जो है यहाँ बनारस में ही होगा। एक तरह से बनारस का कायाकल्प हो चुका है, और इनको एक दिव्य पुरुष की अगर उपाधि दी जाए तो भी कम पड़ेगी। इन्होंने जो सोचा वो करके दिखा दिया। और बनारस एक अभी धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, मतलब सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है, लेकिन अब पर्यटन की दृष्टि बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। हर कहीं भी चाचा कि बनारस में रहते हैं, गांव जाइए, बुंदेलखंड में जाइए, कहीं भी जाइए, अरे बनारस से आए आप, बनारस मोदी ने क्या क्या कर दिया। मतलब हर आदमी की जुबान पर मोदी हो गए, घर घर मोदी, हर मोदी। अब रियली में वास्तव में हुआ है। पर एक बात बताइए, ये सिर्फ काम जो है वो मोदी जी का है कि भाई महंत जो हमारे हैं गोरखनाथ मठ के, ये भी कुछ कर रहे हैं? इनसे, इन सज्जन से जरा पूछो फिर। आप बताइए कि योगी जी को क्रेडिट दीजिएगा कि सब मोदी है? नहीं, किसी एक को मतलब मोदी को नहीं, मतलब सबको हम कहेंगे, सबका योगदान है। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, मोदी जी का, मतलब योगी जी का, सबने अपना 100% दिया है। जो वो सबसे अच्छा कर सकते थे उन्होंने काशी के लिए किया है, जो आज तक नहीं हुआ है।
ये फैक्ट है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और कल रात को 1 बजे वहाँ बनारस का रेलवे स्टेशन देखने गए थे मोदी जी, ये पता है? देखिए हमारे पीएम और हमारे पीएम और हमारे सीएम का जवाब नहीं, और हम भाग्यशाली हैं कि इस दौर में हम हैं। आप रात में 1 बजे मोदी जी पहुंचे तो वो छोड़िए, जितने कार्य बनारस में हुए योगी जी हमेशा रात में 10 बजे के बाद ही आते ताकि हम जनता को कोई कष्ट न हो, सामान्य जनता को। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप तो पत्रकार हैं, आप इसको इतिहास में निकालेंगे, शायद ही किसी पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र में इतने दौरे किए हों जितने मोदी जी ने किए। ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं कि आज तक किसी ने नहीं किए हैं, और जितना अपडेट वो लेते हैं उतना किसी एमपी ने भी नहीं किया। कोरोना होने के बाद भी योगी जी 1 हफ्ते क्वारंटाइन रहे, उसके बाद निकल के हर जिले में दौरा किए। मतलब पॉपुलैरिटी ग्राफ में देखेंगे तो इंडिया में नंबर 1 पर है मोदी जी। अनाउंस करते हैं योगी मोदी जी वहां से, दिल्ली से कोई भी योजना, और नेक्स्ट डे यूपी में लागू होता है। योगी जी तुरंत उसको अनाउंस कर देते हैं कि हमारे यहाँ लागू। तो और चाहे वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहा हो, चाहे कोरोना में लोगों की देखभाल का प्रोग्राम रहा हो, योगी हमेशा नंबर 1 पर रहे हैं। और योगी जैसा कर्मठ, देखिए वो हैं सन्यासी, उनसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की पॉलिटिक्स भी वो कर लेंगे सफलतापूर्वक, क्योंकि उम्मीद नहीं की जाती थी। लेकिन योगी ने जिस तरह से पॉलिटिक्स किया यूपी में और जिस तरह से जनहित का काम किया, वह लाजवाब है। वह कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया इंडिया का। आप किसी भी मुख्यमंत्री की तरफ देखिए, योगी की तरफ देखिए, ये उसी तरह हुआ जैसे जब मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो नंबर 1 पर गुजरात चल रहा था। वो यूपी जो हिंदुस्तान के नक्शे पर कहीं खोया हुआ था, उस यूपी को ले आके नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर लाने वाले योगी ही हैं। पर एक अब विपक्ष की तरफ से शुरू हुआ है। कल राहुल गांधी ने भी ये कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू के लिए काम करेगी, बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व के लिए काम करेगी। तो हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग जोड़ के बताया जा रहा है। अब आप हमें बुद्धिजीवी बताइए कि क्या सही है क्या गलत। मैं 1 मिनट, इस शब्द को जो आपने कहा है मेरे समझ में नहीं आता था। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा तो इन्होंने कहा मैं रात को सोच करके बताऊंगा। आप इनसे बताइए। ऐसा है कि हम लोग लड़कों को पढ़ाते थे कि गो माने गाय, कि गो का लक्षण क्या है, तो गो का लक्षण गोत्व है, जिसमें गोत्व हो वह गो है। उसी तरह हिंदू का लक्षण हिंदुत्व है। हिंदू वह है जिसके अंदर हिंदुत्व है। यह जानना चाहिए। राहुल गांधी को जानते ही नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं है। इसलिए हिंदुत्व अलग नहीं है। हिंदुत्व के बिना हिंदू का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ वहाँ हिंदुत्व है, जहाँ जहाँ हिंदुत्व है वहाँ वहाँ हिंदू है। क्या बात है, एक तो ताली हो जाए। प्रोफेसर साहब, आप यहाँ बैठ के चाय की चुस्की क्या ले रहे हैं? आपको तो आगे होना चाहिए। प्रोफेसर साहब है सर। पर ये हिंदू और हिंदुत्व के बारे में आप कुछ कह रहे हैं। बहुत ही अजीब तरह का मतलब ये वक्तव्य है। शायद जिसने भी इस स्क्रिप्ट को कल लिखा तो हमेशा वो गलत स्क्रिप्ट पढ़ जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या बोल रहे हैं। कल मैंने काफी प्रयास किया कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। हिंदुत्व, मैं हिंदू हूँ, अच्छी बात है, लेकिन जो दिक्कत उनको है वो हिंदुत्ववादियों से है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप खुद इसका मतलब समझिए। इंसान, ऐसे इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं होनी चाहिए। इंसानियत जो है बुरी चीज है और इंसान अच्छा चीज है। ये क्या कह रहे हैं? मतलब क्या कहूँ आप इसको? एक बात बताइए, मैं आपसे एक और विषय में, क्योंकि आप सब हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक बात हुई है, कॉन्वर्सेशन में आया है, अब यूपी में कानून हुआ है, असम में हुआ है, कर्नाटक में भी कानून होगा, और मुद्दे की बात है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लव जिहाद पर कानून की बात हो रही है। अब क्या ये लव जिहाद एग्जिस्टिंग है एज अ कॉन्सेप्ट? क्योंकि कई लोग इसके टर्मिनोलॉजी पे आप उस पर विवाद होता है कि इसको आप लव जिहाद मत कहिए। पर मैं आपसे कहूंगा कि बहला फुसला कर लोगों को कन्वर्ट कर लेना, और फिर गैर मुस्लिम लड़कियों को, ये लड़के जो फंसाते हैं फेसबुक पर अपना नाम बदल कर चेहरे, अब ये सारे किस्से निकल के तो आते हैं, फिर कहा जाता है कि ये सब मिथ्या है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बीजेपी की तरफ से हवा दी जा रही है, पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये रियलिटी है कि नहीं है? देखिए, इसमें सच्चाई पूरी है। ऐसा है, कुछ मुसलमान लड़के
जो पैसे वाले घरों के हैं वो जो है अपना नाम बदल करके, भेष बदल करके विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों की तरफ मंडराते रहते हैं और वो लड़कियों को अपना पैसा का लालच दे करके साथ में घुमाना, उनके ऊपर पैसा खर्च करना, ये सब करते हैं और धीरे धीरे उनको बहका करके ये ले जाते हैं। ये सत्यता है और ये हम लोगों ने आंख से देखा, इस तरह घटनाएं हुई हैं। और जो हुआ क्या है कि ये बातें कब उभर के सामने आती हैं, जब वो उनसे निकाह कर लेते हैं और जब उनकी उपेक्षा होने लगती है, लड़कियां जब प्रताड़ित होती हैं या बगावत करती हैं, तब ये बातें समाज में आती हैं उभर के कि ऐसा ऐसा हो गया, अन्यथा चीजें दबी की दबी रह जाती हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, मेरा जो अपना मानना है, और इसको धीरे धीरे हवा दी गई। पहले ये था कि इतना मुखर नहीं था, अभिव्यक्ति के माध्यम इतने मुखर नहीं थे। आज चूंकि अभिव्यक्ति के माध्यम मुखर हो चुके हैं, इसलिए ये चीजें सामने आ रही हैं। और अपने बनारस में ही ऐसे कई उदाहरण हैं कि सुनियोजित ढंग से लोगों को जो है वो खासतौर से लड़कियों को वो धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि नैतिक विकास होना चाहिए। यह नैतिक विकास की जो है आवश्यकता है और नैतिक विकास न होने के कारण ही ये समस्याएं आ रही हैं। ये दोनों तरफ से समस्याएं आ रही हैं, लड़के और लड़की दोनों की तरफ समस्याएं आ रही हैं। इसलिए नैतिक विकास की जरूरत है और जब नैतिक विकास हो जाएगा तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह विवेक जो है हमारे अंदर आ जाएगा। जी, और ये नैतिक विकास की बात जो है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी गई है। तो अगर हमारी संस्कृति का पाठ हम पढ़ाएं और या फिर जिस किताब को हमने पूजा के लिए रख दिया, पढ़ना छोड़ दिया, जैसे भगवत गीता है, उसको पढ़ना शुरू कर दे, तो ये नैतिक विकास जो है अपने आप समाज में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम अपने साहित्य को, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ है, पढ़ना शुरू कर दें तो नैतिक विकास जो है आ जाएगा। और आपको पता नहीं, आपको ये मालूम है कि नहीं, बहुत पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गीता की परीक्षा होती थी। मुझे पता है। जी, गीता की परीक्षा होती थी, लेकिन बाद के आने वाले कुलपतियों ने इसे हटा दिया, इसीलिए कि नैतिक विकास हो। मेडिकल के लोगों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, इंजीनियरों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, वकीलों का भी नैतिक विकास होना चाहिए, इसलिए गीता रखी गई थी। इसलिए तो अब जो काशी के एमपी हैं उनके लिए एक छोटा सा संकेत ये है कि काशी हिंदू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गीता की परीक्षा होती थी, जिसको कुलपतियों ने हटा दिया, इसको वापस लाने की आवश्यकता है। पूर्व प्रोफेसर कह रहे हैं, देखिए ये चाय के ग्लास देख रहे हैं, 3 से 6 और 6 से अब 12 हो जाएंगी, बातें चलती रहेंगी, खत्म नहीं होगा पर यहाँ पर हम रोल करना बंद करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन।